بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 12 روم زندہ شعر مردہ شعر پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں جمیل الدین حالی اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں ایک سفر نامہ نگار اپنے سفر کے دوران یا اپنے سفر کے اختتام پر اس سفر میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو بیان کرتا ہے تو اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ تو روم زندہ شعر مردہ شعر صنف ادب کے لحاظ سے ایک سفر نامہ ہے۔ مصنف ہے اس کے جمیل الدین حالی۔ روم کسی وقت میں عیسائی مملکت تھا جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور یہ ان 3 ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی جو قبل اسلام بھی موجود تھی، یعنی یونان، روم اور فارس۔ کسی وقت یہ 3 ریاستیں تھیں جو اسلام سے پہلے بھی موجود تھیں۔ تو روم کی سیاحت کے دوران جو مختلف حالات و واقعات جمیل الدین حالی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ جمیل الدین حالی اپنی سیاحت کے دوران جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اس سبق میں ہم نے مزین کیا ہے ایک سفر نامہ کی صورت میں، اور یہ سفر نامہ ان کے اصل سفر نامے دنیا میرے آگے سے محفوظ ہے۔ جمیل الدین حالی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رومی پراٹھا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا۔ روم کا بنا ہوا پراٹھا، جنہیں وہ پراٹھا کہہ رہے ہیں، اصل میں اس کا نام آگے جا کے کلیئر ہوتا ہے۔ ایک نوٹس ہے، ایک ہوٹل ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہے، یہ ہوٹل کے مالک جو ہے، مالکن جو ہے، وہ یہ بات کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے رومی پراٹھا نہیں کھایا، روم کا بنا ہوا پراٹھا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا۔ ہوٹل کا نام ہے اطالوی سینوریٹا، یہ ہوٹل کا نام ہے اطالوی سینوریٹا، اور اس کی مالکن ہے مالک ہوٹل وڈ کاک۔ وڈ کاک یہ ایک عورت ہے، یہ اس ہوٹل کی مالکن ہے اطالوی سینوریٹا کی۔ اس نے فرمایا، یعنی یہ بات اطالوی سینوریٹا جو ہوٹل ہے اس کی مالکن جو وڈ کاک ہے، اس نے یہ بات کہی۔ کیا کہی کہ اگر آپ نے رومی پراٹھا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا، یعنی رومی پراٹھا اتنا لذیذ ہوتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مصنف کہتے ہیں، جمیل الدین حالی کہتے ہیں، میں دل میں ہنسا کہ یہ پراٹھے کی اہمیت مجھے بتا رہی ہے۔ آگے بات کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پراٹھا کھلائیں گی، کہ یہ وڈ کاک جو ہے یہ ہمیں پراٹھے کی اہمیت بتا رہی ہے۔ ارے مائمی عورت، ارے عورت، اپنا تو کلچر ہی پراٹھا کلچر ہے، یعنی ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا کلچر ہی، ہماری تہذیب ہی، ہماری ثقافت ہی، یہ ہمارے رسم و رواج میں پراٹھا جو ہے وہ حد شامل ہے، ہر حال میں شامل ہے، کہ ہمارا ناشتہ تو پراٹھے کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ارے عورت، ہمارا تو کلچر ہی، ہماری تہذیب و ثقافت ہی، ہمارا رہن سہن ہی پراٹھے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، یہ بات میں نے دل میں کہی، مگر اطالوی پراٹھا تو غضب کا نکلا۔ جب اطالوی پراٹھا کھایا تو لاجواب نکلا، بہت زبردست نکلا، غضب کا نکلا۔ اس کا اصل نام پیتزا، پیتزا، یعنی اٹالوی زبان میں، اٹالین زبان میں یہ پیتزا جو انگریزی میں پیزا بولا جاتا ہے، PIZZ ہے، پیزا بولا جاتا ہے۔ اب بنایا کیسا جاتا ہے، ذرا اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ میدا گوندھ کر یہ چوڑی نان بنائی جاتی ہے، ایک بڑی سی نان بنائی جاتی ہے، پھر انڈا ملا، اس نان کے اوپر انڈا ڈالا، ٹماٹر لیپا، اس کے اوپر ٹماٹر کو لگا دیا گیا مختلف جگہوں پر، پیاز چھوٹی باریک ٹکڑوں میں کاٹی وہ اس کے اوپر چھڑکی، ادرک، کالی مرچ، نمک، پسا ہوا گوشت یعنی قیمہ اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا اور تندور میں رکھ دیا، جسے آپ انگلش میں اوون کہتے ہیں۔ کچھ تندور بجلی کے ہوتے ہیں جسے آپ اوون کہتے ہیں، کچھ اصلی اور بڑے پاکستانی تندور ہوتے ہیں، دیکھتے ہوئے بہت گرم تندور جو آگ
आंच में तब कर जो रोमी पराठा या पिज्जा निकलता है। आंच का मतलब हरारत, गर्मी। इस आंच, इस हरारत, इस गर्मी में गर्म होकर पक कर जब रोमी पराठा या पिज्जा निकलता है, इसे इसी वक्त खा लीजिए, यानी गरम गरम खा लीजिए। जबान जरा सी जलेगी कि गरम गरम खाने से जबान तो जलेगी, मगर वो मजा ही क्या जिसमें जलना ना पड़े। यानी जो काम इंसान तकलीफ उठाने के बाद जब उसमें सुरखरू हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उस तकलीफ का मजा जाता रहता है और इंसान खुश होता है, लुत्फ अंदोज होता है। वो मजा ही क्या जिसमें तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़े, लुत्फ ना उठा, जलना ना पड़े। कहते हैं अगर ये ठंडा हुआ तो सारा मजा काफूर हो जाएगा। अगर ये पिज्जा या पिज्जा ठंडा हो गया तो सारा मजा खराब हो जाएगा, सारा लुत्फ जो है वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। अगर ठंडा खा लिया तो कैसा लगेगा कि मालूम होता है आटे में लई मिलाकर खा रहे हैं। गरम गरम खाया तो मजा आया, लेकिन अगर आप ठंडा खा रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपने आटे में गोंद मिला लिया है, स्लेश मिला लिया और आप उसे खा रहे हो। क्योंकि अंडे, गोश्त, टमाटर सब ठंडे होकर अमवारी और यकसनियत अख्तियार कर लेते हैं। अमवारी में बराबर सब एक जैसे हो जाते हैं और बराबरी और यकसनियत अख्तियार कर लेते हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पिज्जा को बार बार गर्म करके खाया जा सकता है। अगर आप ठंडा ना खाएं या गरम गरम पका हुआ ना खा सके तो आप इसे बार बार गर्म करके भी खा सकते हैं। पिज्जा इटली की सबसे सस्ती, मीन अर्जा, कम कीमत और बकौले कसे किसी के बकौल तगड़ी गजा है, सेहतमंद गजा है, ताकतवर गजा है। एक पराठा मुश्किल खाया जाता है कि एक पिज्जा बड़ी मुश्किल से खाया जा सकता है। अपने जैसों का पेट आधे में भर जाता है। जमीलुद्दीन हाली कहते हैं कि मुझ जैसे लोगों का पेट तो आधे पिज्जे से, आधे पराठे से भर जाता है। इसलिए कीमतें भी टुकड़ों के हिसाब से, यानी जो जितना खा सकता है वो कितना ही खरीद सकता है। जरूरी नहीं कि पूरा पराठा मोल लिया जाए, मोल लिया जाए नहीं, खरीद लिया जाए। पौना बल्कि पाव भी मिलता है। 4 में से 3 ऐसे पौना हो गया और 4 में से 1 ऐसा पाव हो गया। आप 3 ऐसे भी खरीद सकते हैं, चौथाई ऐसा भी खरीद सकते हैं। हमारा ऐसे अजाफी डिश के तौर पर खाते हैं। अमीर लोग इसे अजाफी डिश, जिस तरह हम खाने के बाद कस्टर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हलवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं अजाफी डिश के तौर पर, तो इटली के, रोम के अमीर लोग इसे अजाफी डिश के तौर पर खाते हैं। जैसे हमारे उमरा के दस्तरखान पर कई खाने होते हैं, यहाँ भी अपने उमरा के साथ मुवाजना कर रहा है कि हमारे उमरा, हमारे रईसों, हमारे अमीर लोगों के यहाँ दस्तरखान पर खाने की कई चीजें होती हैं और पता भी नहीं चलता कि क्या चीज है बुनियादी। इस खाने में बुनियादी चीज कौन सी और इजाफी डिश कौन सी है, किसे खा के पेट भरा जा सकता है और किसे इजाफी डिश के तौर पर खाया जा सकता है, पता भी नहीं चलता। एक चीज बता दी पिज्जा के बारे में, जो कि इटली, रोम की सबसे मशहूर गजा, और ये एस्पागेटी है। एस्पागेटी, अलिफ ये सीन पे, अलिफ गाफ ये ते छोटी ये, एस्पागेटी, जिसे यहाँ के अंग्रेजी समझने वाले स्पेगेटीज वगैरह कहते हैं। होता क्या है, हालांकि वो इससे सवैयां भी कह सकते हैं। स्पेगेटीज या एस्पागेटी कहने की बजाय वो इससे सवैयां भी कह सकते हैं। मोटी लंबी होती है कि रोम से कराची तक बहरी तार का सिलसिला कायम करने में काम देती है। बहरी मीन समुद्र के अंदर से एक तार का, यानी मवासलाती निजाम कायम करने का, एक मवासलाती सिलसिला कायम करने के काम में ये आ सकती है। इतनी लंबी होती है। यहाँ मुसन्नफ जमीलुद्दीन हाली थोड़ा सा मजाक का पहलू लेते हैं। चमचे, ये स्पेगेटीज खाई कैसे जाती है, चमचे, कांटे, छुरी, तीनों की मदद से खाना पड़ता है स्पेगेटीज को। हल्के मक्खन के सालन में सेर भर के हल्के मक्खन के शोरबे में 1 किलो मोटी लंबी सवैयां और साथ एक बड़ा सा पिज्जा
इन खाने के माहिर जो कन अखियों से मेरी बेबसी को देखते जाते हैं। मीन आंख के कोने से मीन या जैसे चोरी छुपे मेरी बेबसी को, मेरी लाचारी और मजबूरी को देखते जाते हैं। यानी जिस महारत के साथ वो स्पेगेटीज खा लेते हैं, इस महारत के साथ मैं नहीं खा सकता, इसलिए वो खुद तो महारत के साथ खाते हैं और मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं और चोरी छुपे मेरी बेबसी को, मेरी लाचारी को भी देख रहे हैं। दो खानों का जिक्र किया। अतालवी यानी इटली के लोग, इटली के रहने वाले लंच खाने के बाद, लंच का मतलब दोपहर का खाना, दोपहर का खाना खाने के बाद कैलुला जरूर करते हैं। कैलुला का मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करना, और हमारे मजहब में भी दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सस्ताना आराम करना, इसे कैलुला कहते हैं, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इटली के लोग दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम जरूर करते हैं। यूरोप के इंतहाई शमाल में होने की वजह से, कि इटली यूरोप के इंतहाई शमाल में होने की वजह से ये मुल्क यूरोपियों के बकौल, यूरोपी ये कहते हैं कि ये मुल्क यूरोप में, यूरोप के इंतहाई शमाल में है, इस वजह से ये गर्म है। एक बात, और दूसरी बात, मैदे का खाना खाकर यूं भी नींद आती है कि मैदे की बनी हुई चीजें ये खाते हैं। जो स्पेगेटीज का जिक्र किया या जो पिज्जा का जिक्र किया, ये दोनों खुराक, ये दोनों खाने की चीजें मैदे से बनती हैं, और कहा जाता है कि मैदे की तासीर गर्म होती है, और इसलिए ये मैदे के खाने खाकर नींद आती है। चुनांचे 1 बजे दोपहर से 4 बजे सवेर तक कारोबार तकरीबन बंद रहता है। यानी ये उनका ब्रेक टाइम है, ये उनका लंच टाइम है। 1 बजे से लेकर सवेर शाम के 4 बजे तक, 4 बजे तक कारोबार बंद रहते हैं, और लंच टाइम 4 बजे खत्म होता है। ये ब्रेक टाइम, ये लंच टाइम 4 बजे खत्म हो जाता है। तो यार लोग 2-2 घंटे और काम करते हैं। यानी छुट्टी का टाइम 6 बजे है। इस लंच टाइम के बाद दोस्त लोग जो हैं मुख्तलिफ दफ्तरों में काम करने वाले 2 घंटे और काम करते हैं, मगर इन 2 घंटों में भी 15 मिनट चाय के वक्फे के नाम पे जो रिमेनिंग, जो बाकी मानता 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटों में भी वो 15 मिनट चाय के नाम पे ज़ाया कर देंगे, और आप पौन घंटे गप और आराम फरमाते हैं। आधा पौना घंटा गप करते हैं और आराम फरमाते हैं। यानी ये बाकी मानता जो टाइम होता है, इसमें भी 1-8 घंटा वो खाने पीने में और आराम में और गपशप में ज़ाया कर देते हैं। और 6 बजे औकात दफ्तर ख़त्म हुए, यानी दफ्तर का वक्त ख़त्म होता है। तो मीन के शेर का इस तरह लिखा कि फिर मौज हवा पे चाहे भी नजर आई। कंप्लीट शेर सुना देता हूँ। मीन को जब दिल्ली याद आता है तो दिल्ली की याद में मीन कहते हैं, फिर मौज हवा पे चाहे भी नजर आई, शायद के बाहर आई जंजीर नजर आई। दिल्ली के नज़े ऊंचे ओरा के मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। यानी इनकी एक कैद से जान छुट्टी दफ्तर में काम करने की वजह से, यानी अब जब दफ्तर का टाइम खत्म हो गया तो इनको अपने हालात बेहतर होते हुए नजर आए, इसलिए ये खुशी खुशी दफ्तर से निकले। लेकिन मुसन्नफ कहते हैं, मैं अभी इस मौज के पैचों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हुआ था। वैसे मौज का मतलब होता है ले, पहचान का मतलब होता है बल खाते हुए। तो मैं कहता है मैं इस लहरों के पैचों से, बलों से अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं हुआ। यानी इटली रोम की जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि मैं अकेला हूँ, और अकेला आदमी कब तक घूमेगा। यानी सियाहत के दौरान, इटली की सियाहत के दौरान, रोम की सियाहत के दौरान मैं रोम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और अकेला आदमी कब तक घूमे, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत का मतलब मुश्किल, तकलीफ, सबसे बड़ी जो तकलीफ मेरे इस सियाहत के दौरान आए है वो क्या है, ज़बान याद तुर्की है। कि मेरे दोस्त की ज़बान जो तुर्की है, कहना ये चाहता है, ये तुर्की का कि फारसी ज़बान के एक मुक़ल्ला है कि ज़बान याद मन तुर्की दमन तुर्की नमीदा, कि मेरे दोस्त की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता। ये वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें किसी बात की समझ ना आ रही हो। कहना ये चाहता है कि
جہاں کی جو زبان ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اٹالین زبان، اطالوی زبان، اٹلی کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی. 2 دن میں اطالوی سیکھ. ایک کتاب کا نام ہے کہ کتاب کا ٹائٹل ہے 2 دن میں اطالوی سیکھ. بار بار پڑھی میں نے یہ کتاب خریدی اور یہ کتاب میں نے بار بار پڑھی، بلکہ ہر وقت جیب میں رہتی ہے یہ کتاب، ہر وقت میری جیب میں رہتی ہے، مگر کچھ خاص کام نہیں آتی. میں اس سے کوئی خاص کام نہیں لے سکا، یا اتنی جلدی مجھے اطالوی زبان نہیں آئی. چنانچہ میں نے اپنا پڑاؤ ایک پل پر لگایا ہے، اپنا پڑاؤ، اپنا بسیرا، اپنا ڈھیراؤ ایک پل پر کیا جو میری طرح تنہا بھی ہے، کہ میں بھی روم میں تنہا اور یہ پل میری طرح تنہا ہے، اکیلا ہے، اور ہنگامہ پرور بھی، ہنگامہ خیز بھی، ہنگاموں سے بھرپور بھی. یہ پل تنہا بھی ہے اور ہنگاموں سے بھرپور بھی ہے. اب تنہا کیسے؟ کہ تنہا یوں کہ اکیلا ہے. کون؟ یہ پل تنہا ایسے کہ اکیلا ہے، ایک ہے اور بے جان ہے، یعنی یہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ سے کہیں موو نہیں کر سکتا. یہ آ گیا تنہائی کا جواب. ہنگامہ